Hello students, welcome back in this video, in the next video of science 2. Okay, and the chapter is life process of living organism part 2. So today we'll continue further. Do you know the chromosomes number in the germ cells producing the gametes are diploid, that is 2n. देखिए जब meiotic division की मदद से गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट्स, ओके, दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड, that is 2n. It includes 22 pair of autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is 44 plus XX or 44 plus XY. देखिए 44 plus XX is female, it contain female chromosomes, and 44 plus XY chromosomes are there in male. These germ cells divide by meiosis, meiotic cell division होता है इसमें. Due to this, gametes contain only haploid number of chromosomes, that is 22 plus X or 22 plus Y. Two types of sperms are produced as 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced of only one type as 22 plus X. देखिए क्या होता है कि if you see in male, okay, male gamete is called sperm and female gamete is called as oocytes. Oocytes means it's a kind of egg, okay, which are produced in the female. So sperms में chromosomes जो होते हैं मेल में, ठीक है, वो X और Y होते हैं, और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं. सो इसके जब डिविजन्स होते हैं, म्यूटेटिक डिवीजन, ओके, तो उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं. सो 44 हाफ हो जाता है 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ओके, बिकॉज दिस इज देयर इन द मेल. These chromosomes are present in the male, okay, while 22 plus X only is there in the female. अब होता क्या है, देखिए 22 plus X chromosome when they unite with 22 plus X chromosome of female, ठीक है, तो 22 44 and X becomes XX. So 44 plus XX chromosomes बनते हैं. So possibility वहाँ पे होती है कि the child which is produced, okay, that is reproduced, that is girl child, ठीक है, लड़की पैदा होती है उस टाइम पे. बट अगर 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई क्रोमोसोम मेल का और फीमेल का 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम जब यूनाइट होता है टुगेदर, ओके, तो ये बन जाता है 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स. तो उस टाइम पे चांसेस है, उस टाइम पे बॉय पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, ठीक है. सो बेसिकली द जो मेल गैमेट्स होते हैं जो वो डिसाइड करते हैं कि whether the child will be boy or whether the child will be girl, not female, because female has only one type of chromosome, that is 22 plus X chromosomes, ठीक है, बट XX chromosomes ही होते हैं फीमेल के पास, जबकि मेल गैमेट के पास XY chromosomes होते हैं, ओके. सो व्हेन X chromosome combined with X chromosome of female, it forms the girl child. When Y chromosome of male gamete combined with X chromosome of female gamete, okay, they form XY, that is boy. So अगर XX chromosomes बनते हैं तो child will be girl, and if XY chromosomes बनते हैं then the child will be boy, okay. So this reproduction of child, whether it will boy or girl, it completely depends on the male gametes. Both sperms and oocytes are produced by meiosis. Meiotic cell division के मदद से sperms और oocytes produce होते हैं. If in case of sperms, process of meiotic division is completely before the sperms leave male reproductive tract. ये पहले ही complete हो जाते हैं जब before sperms are releasing, okay, leave the reproductive tract. However, in the case of oocytes, process of meiotic division complete after the ovulation, during the fertilization in the oviduct, ठीक है. जब फर्टिलाइजेशन होता है या फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोसेस meiotic cell division complete होता है. तो आप याद रखिए ये, डोंट गेट कंफ्यूज. मेल कंटेन X and Y chromosomes while the female contain XX chromosomes, ठीक है. जब XX chromosomes combine होते हैं तो the child will be girl, and if the XY chromosome जब combine होते हैं तो child will be boy, okay. So this you should know. Next, development and birth. The zygote
form after the fertilization in the oviduct undergoes the repeated mitotic division and embryo is formed. देखिए यहाँ पर ये ओवरी है, ओके. फ्रॉम हियर द ओव्यूल इज प्रोड्यूस, एग इज प्रोड्यूस, ओके. एंड यहाँ पे ये ओविडक्ट में यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट मतलब यहाँ से स्पर्म आ रहा है, ठीक है, स्पर्म और जो एग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओवरी में, तो वो दोनों कंबाइन होते हैं, यूनाइट होते हैं एंड दे फॉर्म द जाइगोट हियर एंड देन दिस जाइगोट ट्रैवल, ओके, slowly and steadily and then it stick to this wall of the uterus. यहाँ पे ये जो यूट्रस का वॉल है वहाँ पे वो चिपक जाते हैं और वहाँ से फिर एम्ब्रियो बनना चालू होता है. मीन वाइल इट इज़ पुश टूवर्ड्स द यूट्रस और धीरे धीरे फिर वो यूट्रस की तरफ उसको धक्का देते हैं. वंस इट रीचेज द यूट्रस इट इज़ इम्प्लांटेड एंड फर्दर डेवलपमेंट अकर आफ्टर द इम्प्लांटेशन. An organ called as placenta is formed for the supply of food material during the growth in the uterus. देखिए जब यूट्रस में आ जाता है एम्ब्रियो और वो एम्ब्रियो कन्वर्ट होने लगता है बच्चे में, ठीक है, तो उसमें एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है प्लानसेट है, ठीक है, वो बच्चे की नाभि से जुड़ जाता है, ठीक है, और वो ऑर्गन की मदद से जो ऑर्गन होता है, ठीक है, उसकी मदद से जो बच्चे की नाभि से जुड़ गया है उससे उसको खाना पानी सब मिलता है, ऑक्सीजन वो सब. Embryonic development is complete approximately within the 9 months after the fertilization. तो ये पूरा प्रोसेस एक पूरा कंप्लीट होने में, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होने में it takes 9 months and after that the child comes out from the vagina. Okay, so this is the process they had given you. See in 4 weeks how the child it start developing in embryo, start developing into child. Okay, in the 8 weeks you see, then 12 weeks you see there is a difference taking place as there is a difference in the weeks. जैसे जैसे weeks बढ़ रहे हैं वैसे child में भी differences आप देख सकते हैं. 16 weeks में, 20 weeks में, 24 weeks में, 28 weeks में देखिए, 22 weeks and 36 weeks. 36 weeks में काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा चाइल्ड में एंड इट डेवलप ऑलमोस्ट, ठीक है, काफ़ी डेवलप हो चुका है वो, ठीक है, 36 weeks में. This is how the cycle, this is how the fertilization take place. ठीक है. Always remember the man is totally responsible whether the couple will have the boy or girl child. The male gametes are responsible, okay, basically whether the child will be girl or boy, because मैंने अभी आपको बताया कि if the male gamete has 2 chromosomes, okay, X and Y chromosome, if X chromosome of male combined with X chromosome of female, then the child will be what? Girl. Okay, and if Y chromosome of male combined with X chromosome of female, that time the gamete will form, that is XY, and that time the child will produce, that will be boy. Okay, so male gametes are responsible for the boy or girl. During the zygote formation, man contributes either X or Y chromosome to the next generation. You should know first sperm, that is male gamete, and the egg, that is female gamete, they combine together, they form the zygote, and from zygote they convert it into embryo, and from embryo they get converted into child. But female transfer only XX chromosome into the next generation. At the time of fertilization, if X chromosomes come from the male, the child will be a girl, and if the Y chromosomes, then the child will be a boy, as I said now. Thinking of this, is it a right to consider that the mother responsible for girl child? We all must take the efforts to stop the female feticide. देखिए ये होता है कि generally in the society mothers are blamed, okay, for the responsible, yeah, mothers are made responsible, okay, no, for the child, whether it is boy or girl, okay, but that is not true. Okay, we should not blame the mother. It is a male gametes of father, okay, that is responsible, okay, whether the child will be boy or girl, okay. And we should also stop the फीमेल फिटिसाइड्स, ठीक है. यूट्रस में पता चलता है जबकि जो बच्चा है वो लड़की है, ठीक है, तो उसको यूट्रस में मार दिया जाता है. सो यू शुड स्टॉप ऑल दिस, ओके, सो दैट फीमेल कैन the female can come out, okay, female child can come out, okay, and जो फीमेल चाइल्ड होती है उनको भी ग्रो करना
या जन्म लेने का अधिकार है. ओके, सो वी शुड ऑल स्टॉप ऑल दिस फीमेल फिटिसाइड्स. ओके, कैन यू टेल फर्स्ट क्वेश्चन, which hormone is released during the pituitary of mother once the fetal development is complete? See, इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. ठीक है, नाम लिख सकते हैं आप इसका हार्मोन का. ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन. यू कैन राइट द स्पेलिंग OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन. Oxytocin is the name of the hormone. Second question, under the effect of that hormone, which organ of the female reproductive systems starts to contract and thereby birth process parturition is facilitated? देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हम लोग ने प्रोसेस देखा था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे आपको पता है ओवरी कम्स आउट. ठीक है, ओवरी, ये ओवरी है, यहाँ से ओव्यूल्स एक कम्स आउट है, यहाँ से वजाइना से स्पर्म एंटर होता है. ठीक है, स्पर्म विल ट्रैवल एंड स्पर्म विल फाइंड द एग. ओके, एंड इट विल यूनिट टुगेदर, दे विल फॉर्म हियर जाइगोट. यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा ओविडक्ट में. ठीक है, और ये जाइगोट फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा यूट्रस की तरफ, और यूट्रस की वॉल पे चिपक जाएगा, और फिर ये जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगेगा. ओके, एंड देन दिस विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द वजाइना. ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, ये जो उनके मसल्स होते हैं यूट्रस के, ठीक है, दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग अपने आप. ठीक है, ये जो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल वॉल होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है, तो जो बच्चा यहाँ पे जो डेवलप्ड हो चुका है, वो नीचे की तरफ उसको धक्का देने में मदद करते हैं यूट्रस. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट कंट्रोल इन द वुमेन्स हैंड. ठीक है, अगर मदर चाहती है कि नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये एक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री है, ये अपने आप होगा. ठीक है, यूट्रस के मदद से. ठीक है, ये यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा एट दैट टाइम, ओके, द एम्ब्रियो, या जो एम्ब्रियो से जो चाइल्ड कन्वर्ट हो चुका है, कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो नीचे की तरफ आने की अब कोशिश करेगा. ठीक है, क्यों नीचे की तरफ आ रहा है? उसको धक्का दिया जा रहा है यूट्रस की मदद से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यूट्रस. उस टाइम पे देर इज़ लॉट्स ऑफ पेन दैट मदर बेयर द पेन. ठीक है, माँ को बहुत दर्द होता है उस टाइम पे, मदर को बहुत दर्द होता है इस टाइम पे, बिकॉज सच अ पेन वी कॉल इट एज अ लेबर पेन. ओके, एंड देन द चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना एंड फाइनली द चाइल्ड गेट बर्थ. ओके, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्च्यूरेशन, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, menstrual cycle. Female reproductive system undergoes some changes at puberty, and those changes repeated at the interval of every 28 to 30 days. देखिए जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है एक लेवल में, इफ़ यू सी देर इज़ अ चेंजेस यू टेक प्लेस, changes happens in the girl, okay, child. Okay, दिस रिपीटेड चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये चेंजेस आपको हर 28 से 30 दिन में दिखेंगे गर्ल चाइल्ड में. ओके, और ये चेंजेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस controlled by 4 hormones. These are controlled by 4 hormones. The name of the hormones are, those 4 hormones are follicle stimulating hormone, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. ओके, FSH. सेकेंड, luteinizing hormone LH, एस्ट्रोजन and progesterone. These are the 4 hormones who control the menstrual cycle. One of the several follicles in the ovary starts to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. देखिए क्या होता है, this developing follicle secretes the estrogen. यहाँ पे देखिए ये, or this here from ovary to oviduct. Okay, when the egg comes, oocytes comes. Okay, at that time in the ovary, okay, oocytes is present in it. यहाँ पे oocytes होता है already oviduct में. ठीक है, and because of that, okay ना, because of the effect of FSH, follicle stimulating hormone की इफेक्ट के प्रभाव के कारण, ओके ना, देर इज़ अ
देयर इज अ सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोजॉन, ओके, सीक्रेशन होता है एस्ट्रोजॉन का, ठीक है, एस्ट्रोजॉन एक हार्मोन है, ओके, देयर इज अ सीक्रेट्स ऑफ दैट हार्मोन एस्ट्रोजॉन। इसकी वजह से ये जो ओविडक्ट में जो ऊसाइड्स बना है वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, वो आगे उसको धक्का दिया जाता है, ओके। Endometrium of the uterus start to develop during the first cycle or regenerate during the subsequent cycle under the effect of एस्ट्रोजॉन। अब जो एस्ट्रोजॉन जो रिलीज हुआ है, जो सीक्रेट हुआ है, उसके कारण एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस स्टार्ट टू डेवलप। व्हाट इज एंडोमेट्रियम? एंडोमेट्रियम एक इंटरनल वॉल है यूट्रस का, ठीक है, यूट्रस के अंदर एक इंटरनल वॉल बनना चालू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस, ओके, देर इज अ इंटरनल वॉल स्टार्ट, यहाँ पर एक वॉल बनना, ये देखिए एक ऐसा अलग से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक वॉल अंदर से अंदर, यूट्रस के अंदर ही एक वॉल बनना चालू हो जाता है, दैट इज इंटरनल वॉल ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं, ओके, दैट स्टार्ट डेवलपिंग, ओके, और वो रीजनरेट होने लगता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजॉन। ठीक है, अब आगे, मीनवाइल developing follicle completes its development, it bursts under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released। यहाँ पे देखिए आप, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन के पास होती है। देन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देर इज अ फॉलिकल विच चेंजेस इन ओवरी मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन पीरियड के टाइम पे ये चेंजेस होते हैं, जो ओवरी होते हैं, जो एग होते हैं, वो देखिए डेवलप होने लगते हैं। ये जो ओवरी आपको दिख रहा है, ये एस्ट्रोजोन रिलीज़ करना चालू कर देते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजोन रिलीज़ करते हैं, और एक जब ओव्यूलेशन आता है तो ये जितने भी उसमें एक oocyte में जितने भी अंडे होते हैं वो सब रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, वो सब रिलीज़ होने चालू हो जाते हैं, ठीक है, सब रिलीज़ हो जाते हैं ये अंडे। और उसके बाद जो होलो स्पेस बचता है उनका ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद, ओव्यूलेशन में क्या होता है कि जितने भी इसमें एग्स होते हैं ये सब रिलीज़ हो जाते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस ये बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। फूटने के बाद ये क्या हो जाता है कि जितने भी उसमें फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी उसमें oocytes होते हैं, ठीक है, एग्स होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। देखिए रीड करते हैं आगे, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, किसकी वजह से बर्स्ट होते हैं? LH हार्मोन की वजह से ये बर्स्ट हो जाते हैं। एंड oocyte इज रिलीज्ड, यहाँ पे देखिए बहुत सारे oocyte रिलीज हो जाते हैं, LH हार्मोन के कारण ये बर्स्ट हो जाते हैं। यहाँ पे this developing follicle secretes estrogen, endometrium of the uterus start to develop or regenerate under the effect of estrogen। Meanwhile developing the follicle completes its development, it bursts under the effect of luteinizing hormone and oocyte is released, this is called as ovulation। ये process को हम लोग क्या बोलते हैं? ovulation। remaining tissue of the burst follicle forms a corpus luteum, corpus luteum start to secrete the progesterone। ये देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ होलो पार्ट होता है, जो ये जो बचा हुआ, जिसमें से ये देखिए बहुत सारे जो oocytes से वो तो निकल गए, जो बचा हुआ पार्ट है ये देखिए, ये होलो सरफेस जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इस ये देखिए यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिक्यूल फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम, इससे ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है जो बचा हुआ है। कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, फिर ये दूसरे हार्मोन रिलीज करना चालू कर देता है, वो हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजोन, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करते हैं हार्मोन्स जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेरॉन। Corpus luteum start to secrete the progesterone, endometrial glands secrete their secretion under the effect of progesterone, such endometrium is ready for the implementation of embryo। अब देखिए क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होता है इनिशियली, देखिए जब चेंजेस होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये फिगर में 3.21 में, चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंसुरेशन, ये यूट्रस पार्ट है, जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये पूरा पार्ट, यहाँ से ये पूरा पार्ट, ये यूट्रस का पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो सर्कल किया है मैंने,
अब यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हुआ है पीरियड, और ये प्रोसेस सब हो रहा है, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है ये सब। तो धीरे धीरे आप देखिए इनके जो वॉल है, जो यूट्रस के वॉल है, ये देखिए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए ये सब, ये जो लाइन बना रहा हूँ, ये जो पर्पल कलर का, ये देखिए ये जो यूट्रस वॉल है, आप धीरे धीरे देखेंगे ये सब यूट्रस वॉल थिक होते जा रहे हैं। थिक, थिक का मतलब होता है कि मोटा हो रहा है ये यूट्रस वॉल। और ये यूट्रस वॉल कैसा हो जा रहा है धीरे धीरे, एक पीरियड के बाद यहाँ पे देखेंगे पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंडोमेट्रियम। ये प्रोसेस में जब आप आएंगे यहाँ तक ये वाले यहाँ ये प्रोसेस में यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है कि इसमें ये जो वॉल है ये कैसा वॉल हो जाता है कि एकदम स्पॉन्जी हो जाता है, थिक वॉल हो जाता है। जो आपका यूट्रस है इसके पास एक वॉल बन जाता है, इंटरनल जो वॉल अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया था, इंटरनल वॉल एक कुशन जैसा बन जाता है, फ्लेक्सिबल कुशन जैसे, ठीक है, फ्लेक्सिबल कुशन एंड एक वॉल बन जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका ये साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये प्रोसेस हो रहा है, और उसी टाइम पे ये यूट्रस के पास ऐसा एक वॉल बन जाता है। ये देखिए जो मैंने कलर किया है ये ऐसा वॉल बन जाता है, इंटरनल वॉल बन जाता है, ठीक है। और ये इंटरनल वॉल बहुत कुशन जैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पॉन्जी जैसा होता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब ये जब ये ऊसाइज बनता है उस टाइम पे, ठीक है, तो ऊसाइज इज़ वेटिंग, ये जब ये ऐसा वॉल बन जाता है तो ऊसाइड क्या होता है कि यहाँ पे ऊसाइड है ऑलरेडी, ठीक है, इस साइकिल में। तो ऊसाइड क्या होता है कि सपोज़ ये ऊसाइड यहाँ पे अवेलेबल है, तो ऊसाइड वेट करता है कि स्पर्म आएगा यहाँ से, वजाइना से स्पर्म एंटर होता है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म एंटर होता है, तो वो वेट करता है कि अगर कोई स्पर्म एंटर होता है वजाइना से, तो ये oocyte उसके साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो के बाद वो एक चाइल्ड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो चाइल्ड बन जाता है, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो से। देखिए प्रोसेस कैसे है कि मेल गैमेट, मेल स्पर्म कंबाइन विद एग सेल, तो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से चाइल्ड बनना चालू हो जाता है। फिर अगर वो चाइल्ड बन जाता है तो यहाँ पे ये जो कुशन वॉल है, तो ये क्या होता है कि वो देखिए इनिशियली जब डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्ब्रियो बनता है, और फिर धीरे धीरे वो बच्चे में कन्वर्ट होता है। तो एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। सो इफ़ मदर वॉक हियर एंड देयर, ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट एम्ब्रियो कैन गेट अफेक्टेड इन द मदर्स वॉर्म, माँ के पेट में वो बच्चा जो है अभी ग्रो नहीं हुआ है पूरी तरह से, ठीक है, वो उनको हानि हो सकती है, ठीक है, उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए वो एम्ब्रियो को, ठीक है, जो आगे जाके बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ये थिक एक ऐसा कुशन वॉल बनाया जाता है, ताकि बच्चा इधर इधर हो तो उसको लगे ना यूट्रस में, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी डेलिकेट, बच्चा उस टाइम पे बहुत डेलिकेट होता है, तो एक कुशन वॉल बन जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड oocyte इज रिलीज, ये प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है, और ये वॉल जो है वो थिक हो गया। आपको अब समझ में आ रहा है कि वॉल क्यों थिक होता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट बेसिकली द एम्ब्रियो, ओके, इफ द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड, ओके। Endometrial gland secrete the secretion under the effect of progesterone. Such endometry is ready for the implementation of embryo. तो ऐसे एम्ब्रियो रेडी होता है, ऐसे जो वजाइना सॉरी ऐसे जो यूट्रस में होता है वो यूट्रस रेडी होता है। अगर स्पर्म उनको मिलता है तो जाइगोट बना के एम्ब्रियो बनाने के लिए वो तैयार होते हैं, और एम्ब्रियो को सेफ्टी भी देने के लिए वो तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, बिकॉज हर बार इन एवरी मंथ, ओके ना, दे डज नॉट गेट स्पर्म, ओके। तो क्या हो जाता है, तो आगे पढ़ते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे देखिए, इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 है। अच्छा, ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग लेयर जो यूट्रस को मिलता है, अच्छा, उसका समय होता है खाली 24 घंटे के लिए होता है ये, ठीक है। उसमें अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटम बिकम्स इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस अल्बिका। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है, तो उसमें अगर oocyte डेवलप नहीं होता है स्पर्म के साथ, ठीक है, तो उसको कोई स्पर्म आता नहीं है वजाइना में, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि वो फिर कन्वर्ट हो जाता है लिथियम, जो कॉर्पस लिथियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कॉर्पस अल्बिकान्स
अल्बिका में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो कॉर्पस लिथियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस अल्बिका में। फिर इसके बाद अगर आप फिर से देखेंगे जो ये जो वॉल है यहाँ पे, ये देखिए ये जो वॉल है, ठीक है, ये वॉल जो यूट्रस का वॉल है, तो ये यूट्रस का जो वॉल है उसमें फिर से चेंजेस आने लगेंगे। जो पहले कुशन का जो वॉल बना था वो कुशन का वॉल धीरे धीरे हटने लगेगा, ठीक है, और ये हटने लगेगा। और ये कैसे हटेगा, ये देखिए ये हटेगा, जब ये कुशन का वॉल हटेगा जो वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाएगा इन द वोमेंस। यहाँ पे देखिए ड्यू टू दिस सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप, इसके वजह से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो बंद हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजेनरेट, एंडोमेट्रियम बनना बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन टिश्यूज ऑफ डीजेनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवियम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना। फिर जो बचे हुए जो ओवियम है, जो एग है, जो जाइगोट बन नहीं सके, तो वो यूट्रस से अब बाहर आने की कोशिश करेंगे, वो बाहर उनको वजाइना बाहर फेंक देगा। दिस इज अकम्पनीड विद द कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ये किसकी वजह से होता है, किस तरह से फिर वो एग बाहर आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है, तो वो ब्लड के फॉर्म में वजाइना के बाहर आ जाएंगे। ब्लीडिंग कंटिन्यूसली अप्रॉक्सीमेटली फॉर 5 days, दिस इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन। ये एक साइकिल 5 दिन तक चलता है, ठीक है, 5 दिन तक कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होता है इन वुमेन, ओके, ड्यूरिंग दिस साइकिल। तो ऐसे साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। Unless the oocyte is fertilized, okay, ना, an embryo is implanted, this process is repeated every month। जब तक फर्टिलाइज नहीं होता है oocytes और स्पर्म मिलके एक जाइगोट नहीं बनाता, ठीक है, एम्ब्रियो नहीं बनता, तब तक ये जो प्रोसेस है, ये जो पीरियड है वुमेन में, हर महीने चलता रहता है, ठीक है। इफ़ द एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड, एक बार बच्चा यूट्रस में रह जाता है, ठीक है, एक बार एम्ब्रियो बन जाता है यूट्रस में, तो रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्परेली स्टॉप। कुछ समय तक, जब तक एम्ब्रियो है, जब तक वो एम्ब्रियो बच्चे में कन्वर्ट नहीं हो जाता और बच्चा वजाइना से बाहर नहीं आ जाता, तब तक ये जो पीरियड ऑफ ब्लीडिंग ऑफ साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो बंद हो जाता है उस टाइम के। Menstruation cycle temporarily stop till the parturition and thereafter the period of the breastfeeding. Menstruation cycle is a natural process and the woman experience severe pain during this period। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर वुमेन को होता है, ओके, और इसमें बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। सीवियर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू द हेवी ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वीकनेस या थकान ऐसा महसूस होने लगता है। दिस इज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यू टू ऑल सच रीजन्स देर इज़ अ नीड ऑफ रेस्ट अलॉन्ग विद अ स्पेशल पर्सनल हाइजीन। इसके कारण जब ये पीरियड चालू होता है वुमेन में, ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, तो उसमें वुमेन को रेस्ट करना चाहिए और एक पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। So that's it in this video, students. In next video we'll continue reproduction and modern technology. Okay, thank you so much, students.